Morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 8 quadrilateral of class 9. Quadrilateral is a closed figure which has four sides, four vertex, four angles and two diagonals. And the sum of interior angles of a quadrilateral are 360 degree. क्लियर? एक क्लोज फिगर जिसके फोर वर्टेक्स हैं. दिस इज द क्लोज फिगर A, B, C, D. Now this is a closed figure which has four sides. Four side is AB, BC, CD and DA. Its four vertex is A, B, C and D are vertex, and it has two diagonals AC and BD are two diagonals, and the sum of interior angles of the quadrilateral is 360 degree. The sum of angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degree. This is the basic concept of quadrilateral. What is quadrilateral? A closed figure which is four sides, four vertex, four angles and two diagonals, and the sum of its interior angles is 360 degree. Next is types of quadrilateral. Types of quadrilateral. Types of quadrilateral. Types of quadrilateral. First is parallelogram. You also know parallelogram. इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में भी. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो, then it is called parallelogram. Clear? And its property is its diagonals are bisect to each other. पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. डिवाइड इन इक्वल टू पार्ट्स means OA is equals to OC and OB is equals to OD. Clear? And its opposite angles are also equal. Clear? And the one diagonal of a parallelogram divides two congruent triangles. Clear? तो parallelogram, a quadrilateral which has pair of opposite side is parallel and equal is called parallelogram. Clear? तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी. ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी. क्लियर? नेक्स्ट ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज the opposite angles of a parallelogram are equal. This is the first property. Without properties आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सेकेंड, the diagonals of a parallelogram bisect to each other. And third is
the diagonal of a parallelogram divides two congruent triangles. Clear? Now this is the properties of parallelogram. Next is square. Next quadrilateral, जो भी फोर साइडेड क्लोज फिगर है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल. अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं. सेकंड इज स्क्वायर. स्क्वायर अ क्वाड्रिलेटरल विच इज ऑल साइड्स आर इक्वल. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं. क्लियर? तो a quadrilateral which is all sides are equal and each angle is 90 degree and its diagonals are bisect to each other at 90 degree. क्लियर? तो स्क्वायर को हम डिफाइन कर सकते हैं quadrilateral which has all sides are equal, all sides are equal and each angle is 90 degree. प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर bisect to each other at 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम, रेक्टेंगल. क्लियर? नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है. क्वाड्रिलेटरल विच इज द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है कि ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज नॉट 90 डिग्री, जबकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसके ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल बाइसेक्ट करते हैं. तो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज opposite side is parallel and equal and each angle is 90 degree. Clear? अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ rhombus is the diagonal of a rectangle बाइसेक्ट टू ईच अदर. जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, रोम्बस की. ठीक है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है. ए बी सी डी एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. क्लियर? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोम्बस के लिए, तो कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल विच हैज a quadrilateral which has all sides are equal and its diagonal bisect to each other at 90 degree. Clear? Next is trapezium. ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड वन इज नॉन पैरेलल. तो नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज
trapezium. This is a trapezium ABCD, and this is the height of the trapezium. कभी अगर आपको area of trapezium find करना है, we have to use half sum of the parallel side into height. तो trapezium को हम define कर सकते हैं quadrilateral which has one pair of opposite side is parallel and another pair of opposite side is non-parallel. Clear all of you? Trapezium clear हो गया. Next is kite. Next जो quadrilateral है हमारे पास kite है. ये भी एक तरह का quadrilateral है जिसकी adjacent sides के pairs equal होते हैं. Next is kite. Kite is a quadrilateral which is the pair of adjacent side are equal and its diagonals are bisect to each other at 90 degree. क्लियर? तो काइट को हम डिफाइन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल which has the pair of adjacent side are equal, then it is kite and its diagonals are bisect to each other at 90 degree. क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरम बेस्ड ऑफ पैरेललोग्राम्स. जो हमारी थ्योरम्स हैं पैरेललोग्राम पे बेस्ड हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं. थ्योरम बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम. फर्स्ट थ्योरम इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड two concurrent triangles. हमने अभी इसको प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था. अब हम इसको थ्योरम के बेस पे प्रूव करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ये टू गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. See here, this is ABCD is a parallelogram and diagonal AC divide parallelogram in two concurrent triangle. Then we have to prove triangle ABC is concurrent to triangle ADC. तो first we have to write given पे लिखें. तो ABCD is a parallelogram and diagonal AC divide two triangles, triangle ABC and triangle ADC. क्या प्रूव करना है? टू प्रूव triangle ABC is concurrent to triangle ADC. क्लियर? अब यहाँ पे हम अगर इनको एंगल्स मार्क कर दें, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. तो व्हाट वी कैन से दीज आर टू पैरेलल लाइंस. क्लियर? ये आपकी पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है, तो ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई. क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस को ये कट कर रही है, तो दिस इज इन द शेप ऑफ Z. व्हाट वी कैन से दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड AC इज कॉमन साइड. क्लियर? तो टू एंगल एंड इट्स इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, देन बाय ASA रूल दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो प्रूफ पे आए. In triangle ABC and triangle ADC, what we can say, angle 1 is equals to angle 4 because you have to given AD is parallel to BC or AB is parallel to DC. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती हैं. एंड एंगल 2 is equals to angle 3. Both are the relation of alternate interior angles. Clear? And AC equals to AC is the common side. तो by angle side angle rule
by ASA rule, what we can say, triangle ABC is congruent to triangle ADC, then we have to prove the diagonal of a parallelogram divide two congruent triangles. Clear? Next theorem based on parallelogram, किसी पैरेललोग्राम के जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड से आर इक्वल. नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड of a parallelogram are equal. Clear? अब इसको प्रूव करने के लिए we have to draw here parallelogram ABCD. This is a parallelogram ABCD. Clear all of you? And AC is the diagonal of this parallelogram. So first we have to write given. Here to given ABCD is a parallelogram. क्लियर? टू प्रूव आपको प्रूव करना है इसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. क्लियर? प्रूफ पे आए तो यदि मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दिया, दिस एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस एंगल इज 4, व्हाट वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 पैरेलल लाइन से. क्लियर? तो ये ट्रांसवर्सल हो गए तो ये जेड शेप बन रहा है आपके पास. क्लियर? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड AC इज द कॉमन साइड. क्लियर? तो इन दिस टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, in these two triangles angle 1 equals to angle 4 by alternate interior angle, AC equals to AC is the common side and angle 2 is equals to angle 3, this is also alternate interior angle. Then what we can say, angle side angle, then by ASA rule triangle ABC is congruent to triangle ADC. और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो बाय CPCT व्हाट वी कैन से, बाय CPCT इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC. नाउ वेरीफाई द कंडीशन, AD इज इक्वल्स टू BC. क्लियर? Now next is the diagonal of a parallelogram bisect to each other. Next theorem पे हम डिस्कस करते हैं. Next theorem based on parallelogram, the diagonals of a parallelogram bisect to each other. Theorem is the diagonal of a parallelogram bisect to each other. क्लियर? अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. नाउ दिस इज द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. AC and BD are diagonals of a parallelogram which intersect at the point O. So first we have to write given ABCD is a parallelogram and diagonal AC and BD intersect at O. प्रूव करना है. टू प्रूव OA is equals to OC and OB is equals to OD. क्लियर? प्रूफ पे आए. Now we will consider these two triangles in triangle OAB and triangle ODC. अगर हम ये दो triangles consider करते हैं, we have used this triangle
this and this. See here. Now in these two triangles, side AB is equals to DC. Opposite side of parallelogram are equal. ये आपके इक्वल हो गए. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पे दिस AB इज इक्वल्स टू DC हो गया आपके पास में. क्लियर. नेक्स्ट पैरेललोग्राम है, या फिर हम यहाँ इसको इससे भी प्रूव कर सकते हैं. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. क्लियर. दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एंगल और इनकी इंक्लूडेड साइड. बाय ए से रूल दिस टू ट्राइंगल्स आर congruent. Now in these two triangles, what we can say, angle 1 is equals to angle 2. What is? These are alternate interior angle. AB is equals to DC. Given है ABCD parallelogram है तो AB और DC equal होंगे. And angle 3 is equals to angle 4. These are alternate interior angle. Now this is angle, side, angle. Now by A से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODC. और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD. क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट थ्योरम बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Next theorem is theorem based on parallelogram. The opposite angles of a parallelogram are equal. Clear? यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. और हमें प्रूव करना है कि जो इसके पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. यानी कि सपोज दिस एंगल इज 1, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 4. क्लियर. तो नाउ सी हियर गिवन पे है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और जब ये पैरेललोग्राम है तो इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. AB इज पैरेलल टू DC and AB is equals to DC and AD is parallel to BC and AD is equals to BC. Clear? Now next is to prove. See here, यहाँ पे प्रूव करना हमें एंगल 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. Clear? अब यहाँ पे जाएं तो हम इसको डायगोनल डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. यहाँ पे देखें अगर तो बेसिकली यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 प्रूफ पे आए बिकॉज AB पैरेलल टू DC. ये जब दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गई आपके पास. और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बने एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल एंड इट्स सम इज 180 डिग्री बिकॉज इंटीरियर एंगल on the same side. क्लियर. इसी तरीके से अगर यहां पे हम देखें तो ये दो पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल हो गई. क्लियर. तो व्हाट वी कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सेम रीजन, these are co-interior angles. Now this is your equation 1 and this is 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, angle 1 plus angle 4 equals to angle 3 plus angle 4. Angle 4 से angle 4 cancel हो गया. Now this is angle 1 equals to angle 3 and similarly angle 2 is equals to angle 4. Then we have to prove the pair of opposite angles of a parallelogram are equal. Clear all of you the concept of parallelogram. जो भी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन की थी उनको हमने थ्योरम बेस्ड पे प्रूव कर दिया है. थैंक यू सो मच.